Yeah, from today, we begin the in-depth study of the tabernacle. आज से हम मालूम में शुरुआत करेंगे तंबू के बारे में गहराई से शिक्षण हम लेंगे, समझ लेंगे कि तंबू क्या है बोल के। अगर हम 1 कोरिन्थियस 3:16 में देखेंगे, in 1 Corinthians 3:16, what does it say? You said, no? 16. Don't you know that you people are God's temple and that God's Spirit lives in you? So if anyone destroys God's temple, God will destroy him. For God's temple is holy and you yourselves are that temple. It says in here, do you not know that you are the temple of God? So we, as believers, we are the temples of God, are the tabernacle of God. A temple is divided, is actually a tabernacle. And the Spirit of God, starts dwelling in us. The Spirit of God dwells in our spirit. परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, हमारे अंदर जीता है, हमारे अंदर वास करता है। और परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर वास करता है तो हम उसके तंबू बनते हैं। तो हम आज गहराई में हम लोग अभी आगे चल के गहराई में हम सीखेंगे क्या है, क्योंकि हमको जानना है हम तंबू है तो क्या है हम तंबू, और परमेश्वर का योजना क्या है हमारे द्वारे। what is the plans of God through us, the purpose of God for bringing us into this world. It is given in 1 Peter 2:4 and 5. एक पेतरस 2:4 और 5 में लिखा गया है, As you come to him, the living stone, rejected by people but chosen by God and precious to him, you yourselves as living stones are being built into a spiritual house to be Kohanim, set apart for God, to offer spiritual sacrifices acceptable to him through Yeshua the Messiah. Through Yeshua the Messiah. Read again. As you come to him, the living stone, rejected by people but chosen by God and precious to him, you yourselves as living stones are being built into a spiritual house to be Kohanim, set apart for God, to offer spiritual sacrifices acceptable to him through Yeshua the Messiah. क्या बोले हैं कि it says in here, coming to him, उसके पास आएंगे हम, जिसके पास यीशु मसीह के पास हम आएंगे, हम आते हैं, जिसको मालूम है परमेश्वर ने चुना है लेकिन लोगों ने उसको नकारा है। ये प्रभु यीशु के बारे में, he is talking about Lord यीशु मसीह. He is chosen by God. There is a purpose of God to send him into this world. परमेश्वर का योजना है कि योजना था उसको भेजने के लिए, ताकि ये इंसान को, हर एक इंसान को उसका तंबू बनाने के लिए। अब दूसरे वचन में क्या बोलता है, 4-5वें वचन में, in the 5th what it says, I will read it के लिए। अब 5वें वचन में क्या लिखा है,
5वें वचन में ये लिखा है कि दो के 5 में ये लिखा है कि हम भी एक जीवित, तुम भी एक जीवित पत्थर है। यू ऑल्सो आर लिविंग स्टोन्स, आर बीइंग एज लिविंग स्टोन। जैसा मालूम है ये जीवित पत्थर हो, क्यों हो गए जीवित पत्थर? हमें मालूम है एक आत्मिक घर बोल के बांधने के लिए, टू बिल्ड अप एज अ स्पिरिचुअल हाउस, अ होली प्रीस्टहुड, एक पवित्र याजक बनने के लिए, ताकि हम मालूम है आत्मिक अर्पण जो परमेश्वर को बाता है यीशु मसीह के द्वारा उसको अर्पण करने के लिए, टू ऑफर अप spiritual sacrifices like acceptable to God through Yeshua HaMashiach. You see, we are being built as a spiritual house. Okay? So we need to know spiritual things can be understood in the spirit. आत्मिक चीजों को हम आत्मा के द्वारा जान सकेंगे, शारीरिक में हम जानेंगे नहीं. वी कैनॉट अंडरस्टैंड इन द फ्लैश. सो वी नीड टू बी स्पिरिचुअल टू नो. In the spirit we need to know. In 1 Corinthians it says very clearly. You see, in 1 Corinthians, 2. Yeah, read. See, read. Now the natural man does not receive the things from the Spirit of God. To him they are nonsense. Moreover, he is unable to grasp them because they are evaluated through the Spirit. बरोबर है. तो ये क्या बोलता है कि मालूम है शारीरिक मनुष्य ये परमेश्वर के आत्मा का चीजों को ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसके लिए एक मूर्खता है. इट इज फुलिशनेस टू दैट. आप समझे? इट इज फुलिशनेस टू हिम, नॉर कैन ही नो देम. और उसको फिर भी वो और जान नहीं पाएगा वो, क्योंकि दे आर स्पिरिचुअली डिसर्न, क्योंकि ये आत्मिक रीति से उसको पहचाना जाता है. अब मेरी बात समझे क्या नहीं? तो हमें ये जानना जरूरी है. तो इसलिए जैसा प्रकटीकरण में बोला गया है, किसको बोला गया है? यूहन्ना को. जब परमेश्वर चाहता था कि उसको होने वाली चीजों को दिखाने के लिए, तो उसने यूहन्ना से क्या कहा, और उसके बाद उसने सब कुछ दिखाया उसको. यूहन्ना 4:1 और 2 इन जॉन चैप्टर 4. No, Revelation chapter 4 verses 1 and 2. प्रकाशित वाक्य में. Chapter 4, 1 and 2. After these things I looked, and there before me was a door standing open in heaven, and the voice like a trumpet which I had heard speaking with me before heaven, and the voice like a trumpet which I had heard speaking with me before said, Come up here,
and I will show you what must happen after these things. 5 also? one minute. सुनो. It says in here, इधर कहाँ लिखा है ये क्या? इसके बाद जब प्रभु यीशु ने ये 7 मंडलियों को मालूम है उनसे बातें किया, खुद आके उसने बातें किया कि तुम्हारे में ये खराबी है, ये मंडली का ये खराबी है, इसके अंदर ये तुम लोग का ये है, तो इसको सुधारो बोल के वो 7 मंडली को बोला है नहीं. फिर उसके बाद वो यूहान से बोलता है, इसके बाद फिर वो यूहान से कहता है कि इसके बाद यूहान बोलता है कि मैं देखा, आई लुक एंड बिहोल्ड अ डोर स्टैंडिंग ओपन टू हेवन, और बोले मैं जब देखा तो क्या मालूम एक दरवाजा जो है ये स्वर्ग की तरफ खुल रहा है. एंड और क्या बोलता है, एंड द फर्स्ट वॉइस विच आई हर्ड वॉज लाइक अ ट्रम्पेट स्पीकिंग विथ मी सेइंग, और वो बोलता है ये पहला जो आवाज मैंने सुना ये तुरी के माफत आवाज था जो मेरे से बातें कर रहा था, और वो मुझे बोल रहा था कम अप हियर, ऊपर आओ, बोलता है इधर आओ, बोलता है एंड आई विल शो यू द थिंग्स विच मस्ट टेक प्लेस आफ्टर दिस, और मैं तुझे दिखाऊंगा जो चीजें इसके बाद होने वाले हैं. मुझे अगर तुमको देखना है तो ऊपर आओ. अब ऊपर आओ बोलेगा तो उसने पहाड़ के ऊपर उसको आने को नहीं बोला, क्योंकि कोई भी चीज देखना है तो तुम पहाड़ पे चले जाओगे, तुमको अगर दिखना है तो, या ऊंचे इमारत पे जाओगे देखने के लिए, लेकिन वो नहीं बोल रहा है. वो समझेंगे नहीं, वो क्या बोल रहा है, सी देन 5 I mean 2 sorry 2. Instantly I was in the spirit, and there before me in heaven stood a throne, and on the throne someone was sitting. बरोबर है. और बोलता है तुरंत, immediately I was in the spirit, वो बोलता तुरंत मैं आत्मा में हो गया. उसका मतलब ऊपर आओ बोलेगा तो हम लोग को ऊपर आने को बोल रहा है, तो हम लोग को आत्मा में आना है, कुछ भी चीज जानना है तो आज वचन को जानना है, तो नहीं तो कहानी निकालेंगे, इतिहास लिखेंगे, इंसान के मालूम है खुद के दिमाग से मालूम है ज्ञान से मालूम ये करेंगे, और उसी के अंदर मालूम है बहुत से गड़बड़ी हो गए. देयर आर लॉट ऑफ डॉक्ट्रिन्स व्हिच हैव बीन स्प्रेडिंग ऑल अराउंड, नथिंग इन द स्पिरिट. तो बोलते हैं तुरंत मैं आत्मा में आया और मैंने देखा, बोलता है एंड बिहोल्ड अ थ्रोन सेट इन हेवन एंड वन sat on the throne, और एक सिंहासन स्वर्ग में था और उसके ऊपर एक मालूम में बैठा हुआ था. वो कौन बैठा था, प्रभु यीशु बैठा था. थ्रोन ना, सिंहासन के ऊपर मालूम राजा बैठे ना, किंग सिट्स ऑन द थ्रोन. यू गेटिंग मी? सो आई होप मैं ये समझता हूं कि आप लोग यहां तक का समझे, क्योंकि हम लोग बहुत गहराई में जाने वाले, आत्मा में हम लोग सब जानेंगे इसको आत्मिक स्तर पे. समझा क्या नहीं? तो ये व्हाट इज द टैबरनेकल? टैबरनेकल इज अ पैजेंट. तंबू जो है एक ड्रामा है, एक नाटक है जीवन का, और इसके अंदर इट्स अ 3 एक्ट प्ले. इसके अंदर 3 भाग है. And that's why the study of the tabernacle can be divided into 3 main parts or levels. और जब हम उसके बारे में जब जानकारी ले रहे हैं, उसका बारे में शिक्षण ले रहे हैं, तो ये 3 भाग में हमको जानना है. इसका 3 महत्वपूर्ण भाग है, उसका 3 स्तर है. ये 3 स्तर में हमको जानना है इसको. और ये स्तर क्या है? What is that pageant? The pageant of worship. आराधना का मालूम में खेल है वो. नंबर 2, द पैरेबल और कंसील्ड ट्रूथ. और ये जो है, ये जो दाखलता बोलता है ना, दाखलता ना बोलता है, ये छुपा हुआ सत्य का है. और तीसरा, एंड द थर्ड इज the prophecy or revelation of Yeshua HaMashiach,
और तीसरा जो है ये भविष्यवाणी या प्रभु यीशु के बारे में प्रकटीकरण। The pageant was actually a play which recounts the history of God's interaction with Israel. That is we. हम आत्मिक इज़राइल है जो प्रभु यीशु को ग्रहण करते आत्मिक इज़राइल। अगर तुम जाने या न जाने वो बात अलग है। If you know it or you don't know it, you have the knowledge of it, no. Because we are all spiritual Israel. हम सब आत्मिक इज़राइल बनते हैं जब हम प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं। अब समझे क्या? विच रिकाउंट्स, वो मालूम में परमेश्वर का मालूम में उसके साथ वो इतिहास ये करता है। और 7 महीने का मालूम है जो साइकिल है आराधना का, वो 7 महीने के आराधना के बारे में ये करता है। And these acts are called the feasts. If you look at, the Israel, the feast of the Lord, ये 7 महीने का है। ये 7 महीने में हम लोग मालूम है त्योहार मनाते हैं उसके, परमेश्वर के त्योहार। जैसा हम लोग ने अभी खत्म किया, अभी शुरुआत हो गया और ये हो जाएगा। अब समझा क्या नहीं? और each feast, which feast are the celebration, हम लोग मालूम है उत्सव मना रहे हैं उसका, हर एक इसमें उत्सव मनाते हैं। तो each feast is designed to help us understand the progression of spiritual growth। और ये हर एक ये जो है त्योहार ऐसा ये किया, डिजाइन किया है कि हमें वो मदद करते हैं कि हम मालूम है हमारा आत्मिक मालूम में बढ़ोतरी कैसा होना है। फ्रॉम चाइल्डहुड व्हेन वी कम इन द लॉर्ड, हम लोग बच्चे, जैसा पेतरस बोला, नहीं पेतरस बोला ना, किधर है? 1 पेतरस में लिखा है, एक पेतरस में 2 में 1 में क्या लिखा है? नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्बल आत्मिक दूध की लालसा करो, बरोबर है, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। 1 Peter 2:1 2:2 Read. And be like newborn babies, thirsty for the pure milk of the word, so that by it you may grow up into deliverance. बरोबर है। अब बोलता है as newborn babies desire the pure milk of the word that you may grow thereby। एक नया जन्म लिएला बच्चे के मार्फत, जैसा नया जन्म लिएला बच्चा वो दूध के लिए तरसता है, वो दूध पीता है, लेकिन दूध पीते पीते जीवन भर जीता नहीं। तो हम लोग को मालूम है वचन का दूध पीना है, जो शुरुआत होता है दूध से, और फिर उसके बाद मांस के जाना पड़ता है, नहीं तो फिर उधर ही हम लोग वहीं पे रुके रहेंगे। अब समझा क्या नहीं? सो एज न्यू बॉर्न बेबी डिजायर द प्योर वाटर ऑफ गॉड दैट यू मे ग्रो देयर बाय, ताकि हम मन में बढ़ोतरी करें उसके द्वारा। What is the goal of God? परमेश्वर का योजना क्या है? His goal is to train us to be priesthood, priests। उसका योजना ये है कि हर एक विश्वासी तो प्रभु में आते हैं तो वो मन में याजक बनना है, एक मन में एक राजघराने का याजक बनना है, जैसा 1 पेतरस 2:9 में लिखा गया है। नहीं getting me? Yeah. But you are a chosen people, the king's Kohanim, a holy nation, a people for God to possess,
बरोबर है? तो तुम चुने हुए मालूम है वंश है, एक राजघराने के याजक है, एक पवित्र देश है, और एक पल में अद्भुत लोग है, that you may proclaim the praises of him who has called you out of darkness into his marvelous light, जिसने हमें अंधकार से निकाल के उनके अद्भुत प्रकाश में ले आया है। ये परमेश्वर का योजना है। दिस इज द एंड टाइम गोल ऑफ गॉड। सो हाउ डू वी दिस थिंग गो अबाउट दिस 3 एक्ट प्ले? ये 3 मालूम में भाग जो है इसके जाए। नंबर 1 एक्ट इज Passover, which we are going to celebrate in a couple of months now, maybe April. Passover का त्योहार है, तो अपना इसका त्योहार है पेसा। नंबर 2 एक्ट है। ये देखो, हम लोग तंबू है, हम प्रभु के तंबू है। अब देखते हैं क्या इसको। तो ये तंबू है, प्रभु का राज्य है, ये हम है। ये अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग आत्मिक रीति से ये हमारा शरीर है, ये शरीर को भी दर्शाता है। और सबसे पहला जो पेसक का त्योहार जो है, जब वो हम इसमें आते हैं तो पहला मालूम है ये जो है, ये अपना ये वेदी जो है, द फर्स्ट थिंग इज द ऑल्टर, वी मीट द ऑल्टर, दैट इज द पासओवर फीस्ट। ये पेसक का त्योहार है, ये पेसक का त्योहार है, ये पहला। देन ये पेसक का होने के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम तंबू में आते हैं, वी कम इनटू द दर्शन, एंड देयर इन द होली प्लेस, यू नो, व्हेन वी एंटर इन, जब हम पवित्र स्थान में आते हैं, वो हमारे पेसक जो है हमारे शरीर को दर्शाता है। शरीर को हम अर्पण करना है, जैसा रोमियो मालूम है 12:1 के अनुसार। रोमन्स 12:1। I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. बरोबर है। यहाँ पे पहला त्योहार होता है, वो 14 तारीख को जो है ना, इसका जो है निसान के महीने में, on the 14th of Nisan, 14th day of Nisan, क्रिस्ट जो हमारा ये तो अर्पण था, हमारा ये मसीहा था, उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाया था। समझा क्या? तो हमें भी उसको चढ़ाना है। और फिर उसके बाद जब हम हमारे जीवन को जीवित अर्पण बोलता है, लिविंग सैक्रिफाइस, इट्स नॉट अ डेड सैक्रिफाइस, ये कोई मारने वाला जीवित है। तो हमारे शारीरिक विचारों को, हमारे शारीरिक मालूम में इसको स्वभाव को हमको उस वेदी पे डालना है, जलाना है। वी हैव टू सैक्रिफाइस आवर फ्लैश। फ्लैश इज नॉट दिस फ्लैश, इट इज आवर mindset, our thinking, you know, we have to lay it on the altar, burn it on the altar. That is ego. हमारे अहंकार को हमको डालना है, द मैंपन हमको मारना है। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो हम मालूम में वो लोग इसमें पवित्र स्थान में आते हैं, they come into the holies of holy after 50 days, on the 14th, you know, that you know, Passover जब हमने मालूम पेसक को ये किया तो ये नया चांद के समय में था, ये 14वें दिन पे हो गया था। और 14वें दिन पे वो 7 दिन का त्योहार है, वो 14वें दिन पे उसको जब उतारा था क्रूस से तो उसको गाड़ा गया था,
वो बिन कमीर का था, उसने कभी पाप नहीं किया था, तो उसको जब गाड़ा था तो फिर हम लोग मालूम है वो दूसरा त्योहार उसी समय उसी पेशाक के अंदर दूसरा त्योहार जो है बिन कमीर की रोटी, इट्स अनलेवन ब्रेड। फॉर दैट 7 days वी ईट अनलेवन ब्रेड। हम लोग बिन कमीर के हर चीज खाते हैं। और फिर तीसरे दिन जो है ये बिकुरिम बोलता है, ये पहला प्रथम फल है। जब प्रभु यीशु मुर्दे से जी उठा तो वो मालूम में पहला प्रथम फल बन गया। उसको सब दुनिया बोलती है ईस्टर बोल के। आप समझे? फिर 50 दिन के सफर के बाद when they went through that journey of 50 days, they reached a point where they came to Mount Sinai। वो माउंट सिनाई के इस पर्वत पे आया 7 हफ्तों के बाद। यह मालूम 50वां दिन में ये पेंटिकॉस्ट के त्योहार जो हम लोग मनाते हैं, पेंटिकॉस्ट का त्योहार है, ये पेंटिकॉस्ट का त्योहार है। ये अति पवित्र स्थान में हम जाते हैं और पौलुस ने रोमियो 12 के एंड पॉल इन रोमन्स 12:2 हैज टू कम टू पास इन आवर लाइव्स। 12 के 2 में And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may provide what is that good and acceptable and the perfect will of God. बरोबर है? It says in here, ये क्या बोलता है देखो रोमियो 12 का 2 में। अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? नाउ यू विल अंडरस्टैंड हाउ द वर्ड्स कनेक्ट हियर इन द टैबरनेकल। इट सेज इन हियर एंड डू नॉट बी कंफर्म टू दिस वर्ल्ड। और ये इससे मालूम है तुम मतलब ये मत करो, लेकिन तुम्हारा बदलाव होना चाहिए। तुम्हारा मन का बदलाव होना चाहिए, तुम्हारे प्राण का बदलाव होना है। ये हमारे प्राण को दर्शाता है। ये जो अति पवित्र स्थान जो है हमारे प्राण को दर्शाता है, हमारे मन को, हमारे भावनाओं को और हमारे इच्छाओं को दर्शाता है। हमारे प्राण का मुक्ति मिलना है। शरीर का मिल गया है, भाई प्राण का बाकी है। ये आगे चल के हम बताएंगे ऐसा 3 मालूम है बपतिस्मा ये सब कुछ क्यों ऐसा है बोल के। तो आई विल दिस थिंग। सो आवर सोल्स हैव टू बी सेव्ड नाउ। There is a process going on for the renewing of our mind. हमारे प्राण का ये कर रहे हैं that you may prove to what is good and acceptable and perfect will of God, ताकि तुम मालूम में साबित कर सकेंगे क्या अच्छा है और क्या प्रभु को भावता है, प्रभु को स्वीकारता है और उसके पूर्ण इच्छा के अनुसार हम चल सकेंगे। This is serious, you just cannot take it lightly. ऐसा है हम ले नहीं सकते कि हाँ चलता है, नहीं, ये बहुत सीरियस बात है। अब समझेंगे ना? और फिर उसके बाद तंबू का त्योहार है। अति पवित्र स्थान में हम प्रवेश करते हैं। हमें करना है, करते हैं बोल के नहीं, हम करते बोल के बोले नहीं करते, हम लोग को करना है, हमको तैयारी करना है। और उस मालूम में त्योहारों में ये 3 भाग में है। एक तुरी का त्योहार, इट्स अ फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स। देयर आर 3 पार्ट्स फॉर इट। देयर आर 3। द फर्स्ट इज द फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स, वो 7वें महीने में है। पहला दिन मालूम है नया चांद का पहला दिन है, तीसरी का पहला दिन है। वो त्योहार का त्योहार ये है। और उसके बाद ये हमें समय दिया जाता है, हम जीवित है तब तक का हमें समय दिया जाता है कि 10 दिन का समय दिया जाता है कि हम अपने आप को तैयार करें, पश्चाताप करें, ताकि मालूम में वो जो सबसे 10वें दिन पे सबसे पवित्र त्योहार जो है यम किपुर का त्योहार है, जहाँ पे हमारा न्याय होगा। उस न्याय में हमें चुना जाएगा हम वधु है क्या नहीं। we are being we will be judged and if we have this thing
we qualify to be the bride of Christ. Bride of Christ means the tabernacle. परमेश्वर का माल में वधु बनना बोलेगा तो माल में अगर हम योग्य हो गए तो हम तंबू के योग्य हो गए. You getting me? और फिर 5 दिन के बाद 15वां दिन उस महीने का ये जो है ये 8वां दिन है. ये 8 दिन का त्योहार है और ये सबसे उत्तम त्योहार है. नहीं, प्रकटीकरण 21 में लिखा गया है 1 और 2. इसके बारे में मनन करो. you have to meditate on it and know what is the tabernacle. I hope you all have understood by this diagram. We will go into it many times in future. Yeah. 21, 1 and 2. Now I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away. Also, there was no more sea. When I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. Adorned for a husband. Prepared as a bride. Go beyond, हमको, we have to, broaden our understanding. हमें अपने मन को मन में बड़ा करना है, इसी में नहीं रहना है. वो ये बोलना चाहता है परमेश्वर कि एक नया यरूशलेम स्वर्ग से उतरते हुए देखा है, आत्मिक स्तर से उतरते हुए देखा. जब हम अगर योग्य हो गए एक वधु बनने के लिए, तो वो दुल्हन को लेके वो 5 दिन मालूम में स्वर्गीय स्थान में है और 5वें दिन के बाद वो उतरता है. कैसा उतरता है ना. और पहले में ये बोलता है देयर वाज नो सिन. दूसरे में ये बोलता है और मैं योहान एंड आई जॉन सॉ द होली सिटी. पवित्र मन में इसको देखा, सिटी को देखा जो उसका नाम है नया यरूशलेम, विच इज अ न्यू जेरूशलेम, कमिंग डाउन आउट ऑफ हेवन. स्वर्ग से आते हुए देखा है. स्वर्गीय स्थान आत्मिक स्तर पे है. प्रिपेयर्ड, उसको तैयार किया गया एज अ ब्राइड अडोर्न्ड फॉर अ हस्बैंड. एक वधु के इसके अंदर उसको तैयार किया है अपने पति के लिए. यह है नया जेरूशलेम. कोई सिटी नहीं आएगी, सिटी ऑलरेडी है. अब समझे, ये आत्मिक मन में यरूशलेम है. प्रश्न ये है कि हमें याद आता है क्या नहीं इसका, हमें समझ में आता है क्या, आर वी अंडरस्टैंडिंग इट, और आर वी स्टिल caught up in that small skull. We are not getting out of the skull. इस खोपड़ी से हम लोग बाहर आते हैं क्या, उसके आगे सोचते हैं क्या? अगर सोचेंगे और समझेंगे तो हमें समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, नहीं तो वहीं पे घूमते रहेंगे हम. So what is the reason for the feast? इसका कारण क्या है? त्योहार हम जब मनाते हैं, ये परमेश्वर ने हमें त्योहार मनाने के लिए क्यों बोला है? इसलिए बोला गया है कि हमें मदद करेगा याद करने के लिए. इट इज
has been orders, the feast has been ordered for us to celebrate is to help us remember. हमें याद करने के लिए उसने तैयार किया हमें. And that is the reason why Pesach, relates to Egypt. पेसाक जो है वो मालूम है मिस्र देश से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में बोलता है. और वो हमारा शारीरिक मन है. इट इज अ कार्नल माइंड. पेंटिकॉस्ट जो है इट रिलेट्स टू द विल्डरनेस. It is concerned, it is connected to the human soul or a human spirit. एक इंसान के आत्मा के ऊपर. हमारे पास भी आत्मा, हमारा प्राण भी एक आत्मा है. अगर हम प्राण मालूम में ऑपरेशन करेंगे और बोले प्राण को निकालो, नहीं निकाल पाएंगे. वो आत्मिक, वो ये है, समझा क्या? नहीं, आत्मिक है. वो इंसान का आत्मा है. वो इंसान के आत्मा को परमेश्वर के आत्मा के अधीनता में आना है. That human spirit has to come under the obedience, under the authority of God's spirit. Understand? And the feast, the tabernacles, it relates to the promised land. और ये जो तंबू है ना, ये किससे जुड़ा है? ये मालूम में वादा के जमीन के साथ, देश के साथ जुड़ा हुआ है. And it also relates to the Spirit of God or the mind of Christ. ये मालूम में परमेश्वर के आत्मा के साथ जुड़ा है. पेंटिकॉस्ट मालूम में इंसान के आत्मा के साथ जुड़ा है, उसको दर्शाता है. और ये जो है ये इंसान के परमेश्वर के आत्मा से या मन, मतलब यू हैव टू हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट. परमेश्वर का मन, क्रिस्ट का मन रहना चाहिए. द अनॉइंटेड माइंड दैट इज ऑफ क्राइस्ट, वी हैव टू हैव. नाउ we have to understand that we are dealing with a spiritual subject. हमें ये जानना है, ये समझना है कि हम लोग आत्मिक इसके साथ सब्जेक्ट के साथ हम ये कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का जो करार जो है वो आत्मिक मनुष्य के साथ किया गया है, क्रिस्त के साथ किया है, अभिषेक के साथ किया गया है. He has cut, जब हमारे पास अभिषेक है तो उसने उसके अभिषेक के साथ किया गया है. He has cut a covenant with a spiritual or the anointing. The Spirit is anointing. The Holy Spirit is anointing. And the Holy Spirit will teach us. अगर हम मन में आत्मिक में आ जाएंगे, आत्मा में हम आएंगे तो पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा. इंसान के द्वारा दो, लेकिन वो मालूम है हमारे को सिखाएगा. और हम मालूम विल बिकम काइंड क्राइस्ट कॉन्शियस. दिस इज वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड. हम अपने आप को जानना चाहिए. हम कौन है वो हमको जानना जरूर. Because if we stop with the physical symbol, अगर हम आत्मिक मालूम में चिन्हों के हिसाब से हम उधर रुकेंगे और हम मालूम में पवित्र आत्मा के ऊपर हम विश्वास नहीं करेंगे, and if we don't trust the Holy Spirit,
हु इज आवर स्पिरिचुअल टीचर, जो हमारा आत्मिक मन में शिक्षक है, कि हम उसके द्वारे मन में हमें प्रकट करके मिले, खाली शब्दों के द्वारे नहीं, नॉट ओनली थ्रू द वर्ड्स, we will end up in a deadly religious interpretation. हम बहुत भयंकर मालूम में आत्मिक या धार्मिक मालूम में समझ में हम जाएंगे, and will be left out. We will go on the other journey. हम मालूम में अलग मालूम में सफर करेंगे, ऐसा बिकॉज इन 2 Corinthians 3:6 see what it says. 2 Corinthians 3:6 में क्या बोलता है देखो. Corinthians 3:6. 3:6 Who also made us sufficient as ministers of the new covenant, not of the letter, but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life. बरोबर है, क्योंकि मालूम है शब्द है वो मारता है, लेकिन आत्मा हमें जीवन देता है. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सेड, द वर्ड्स दैट आई स्पीक दे आर स्पिरिट एंड दे आर लाइफ. मैं जो शब्द बोलता हूं, प्रभु यीशु ने बोला शब्द बोलेगा तो वचन बोलता हूं, क्योंकि प्रभु यीशु वचन था, उसके मुख से जो भी शब्द निकला वो आत्मा है और वो जीवन है. अगर हम शब्दों के द्वारा ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, ये हिसाब से हम ये करेंगे तो हम बहक जाएंगे, हम बहक जाएंगे. Now there were covenants made, breath covenants made, with Adam. And there were many covenants made before Abraham. बहुत से करार प्रभु ने इसके पहले आदम के साथ किया था, कि उसका श्वास से उसने ये किया था, उसने श्वास फूका, उसने मालूम है he made a covenant with Adam, and there are many before patriarchs, before Abraham. अब्राहम के पहले उसने करार किया था, लेकिन अब्राहम के साथ उसने लहू का करार किया था. He made a covenant with Abraham with his blood covenant which he made. The covenant of faith, विश्वास का करार था, और यही शुरुआत अब्राहम के साथ हो गया. He was a man of faith, वो विश्वास का आदमी या व्यक्ति था. Because even though Adam, Noah and other patriarchs were all covenant men, यहां तक कि मालूम है ये आदम था, नोहा था और दूसरे हमारे पिता ये लोग थे, ये लोग भी मालूम है करार के लोग थे. लेकिन but the covenant was not defined until Abraham came into being. जब तक का अब्राहम ये नहीं हो गया तो उसको मालूम में स्थिर अपना स्थापित नहीं हो गया. अब्राहम के जब आया तो उसके साथ अब्राहम के साथ स्थापित हो गया, और इसीलिए अब्राहम को कहता है कि विश्वास का पिता है वो. एंड दैट इज द रीजन व्हाई अब्राहम इज कॉल्ड द फादर ऑफ फेथ. अब समझे? And we have to be aware that we
are concerned with the 3 levels of the covenant. हमारा 3 स्तर है करार का. हमें ये जानना जरूरी है. There are levels of spirit life which goes beyond faith. और एक स्तर है ये आत्मिक मालूम है जीवन में जो विश्वास से भी आगे जाता है, हमें ले जाता है. It takes us beyond that faith. क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है. Because Yeshua taught us to go from faith on to hope and on to love. क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया कि हम विश्वास से आगे बढ़ के आशा में जाए और आशा में जाके आशा से आगे बढ़ के हमें प्रेम के स्तर पे पहुंचना है. We have to go beyond to the level of love. For God is love. क्योंकि परमेश्वर प्रेम है. परमेश्वर में प्रेम नहीं है. There is no love in God, but God himself is love. So we have to reach that level of love. And then only we will understand what is tabernacle all about. Let's go further down. Because the pageant is a parable. ये जो नाटक जो है ये एक पैरेबल है. ये पैरेबल के अंदर मालूम में छुपा हुआ रहस्य है. There is the truth which is concealed. Understand? मैंने 3 स्तर बताया इसके बारे में. मत्ती 13 में 10 और 11 में क्या लिखा है? In Matthew 13, 10 and 11, what does it say? And the disciples came and said to him, "Why do you speak to them in parables?" He answered and said to them, "Because it has been given to you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it has not been given." What scripture? Matthew 13, Matthew 13, 10 and 11. 10 and 11. यशुआ ने कहा, Yeshua said, in Matthew 13, 10 to 11, he said, when the disciple came to him and asked, "Why do you speak to them in parables?" तुम उनसे मालूम में दाखलता से क्यों बातें कर रहा है? पैराबल्स में क्यों बातें कर रहा है? उन्होंने उनको जवाब दिया. He answered and said to them, "Because it has been given to you to know the mysteries." क्योंकि तुम्हें दिया गया है जो हम आज बैठे हैं और ये रहस्य की बातें जानते हैं, तो परमेश्वर ने हमें चुना है. हम ऐसे एक्सीडेंट से नहीं आए. परमेश्वर ने हमें चुना है ये रहस्य की बातें सुनने के लिए. तो परमेश्वर को धन्यवाद करो इसके बारे में. तुम्हें दिया गया है और रहस्य किसके बारे में? ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन, बट टू देम, लेकिन उनके लिए इट हैज नॉट बीन गिवन, उनको दिया नहीं गया है. समझे क्या नहीं? And the true spiritual Israel was formed as a priesthood. और सच्चा आत्मिक इज़राइल जो है, जो हम हैं, हमें मन में बनाया गया है कि हम याजक बने. लेकिन उनके लिए, and to others, those to whom it is not given to see at this, और वो लोग नहीं जानते. वो लोग उतने स्तर पे, उससे आगे वो लोग नहीं बढ़ते. They don't want to go beyond that because it is not been given. मत्ती 13 का 34, मैथ्यू 13:34.
things Jesus spoke to the multitude in parables, and without a parable he did not speak to them. बरोबर है, ये सब कुछ उसने मालूम है, उसको मालूम है, पैराबल्स में बोला उन लोग, उसके बिना उसने नहीं बोला। लेकिन अपने शिष्यों को उसने समझाया है। He took his disciples and explained to them everything. उन लोग को बाजू में लेके गया, क्योंकि प्रभु यीशु भी जानता था डुक्कर के सामने क्या मैं मोती फेंकूं। आप समझे क्या नहीं? You know that scripture applies there. क्योंकि हो सकता है मजाक करेंगे, ये क्या बात करते हैं, पागल है। आप समझे क्या नहीं? ये सब बातें होते हैं। तो इसके लिए उसने ये किया, और इसीलिए नीति वचन 25:2 क्या बोलता है देखो। दैट इज द रीजन व्हाई व्हेन यू गो टू Proverbs 25:2, see what it says. कितना का नीति वचन 25 का 2। It is the glory of God to conceal a matter, but the glory of kings is to search out a matter. ये बोलता है कि मालूम है, he says is here, it is the glory of God to conceal a matter. Even if God is hiding something, he is concealing something, को छुपाता है। अगर परमेश्वर कुछ छुपाता है तो वो उसके अंदर उसका महिमा है, उसके महिमा के कारण वो छुपा के रखा है। लेकिन वो क्या बोलता है, and then what he says, but the honor of kings, that is those who are chosen like you and me. अब ना ये जो राजा का मालूम है, ये जो है सम्मान ये है राजा का, कि सम्मान ये है कि उसको ढूंढ के निकालो। That is what the word of God says. That's why if we are the searching researchers, अगर हम लोग उसको ढूंढते हैं, then we are the chosen kings. तो हम चुने हुए राजघराने के लोग हैं। कितने धन्य है हम, मालूम? अब समझे क्या नहीं? A functioning part of the king of kings. एक मालूम में कार्यशील मालूम में बाग है हम राजाओं के राजा के, क्योंकि वो राजा आके न्याय करेगा और उसकी वधु जो है वो भी न्याय करेगी। अगर हम वधु बनेंगे तो। अब समझा क्या नहीं? Because the entire Bible is a parable. पूरा बाइबल जो है ये पैराबल है, ये छुपा हुआ रहस्य सत्य है, ये छुपा हुआ सत्य है। इट इज अ हिडन, इट इज अ कंसील्ड ट्रूथ, एंड दैट कंसील्ड ट्रूथ रिवील्स टू अस and takes us, transforms us, और हमें बदलता है from natural carnal man. It transforms us from that. हमें मालूम है हम लोग शारीरिक मनुष्य है, उससे हमको बदलता है। जैसा मैं 1 Corinthians 2:14 में बोला ना, बट द नेचुरल मैन रिसीव इट नॉट द थिंग्स ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड। एक शारीरिक मनुष्य आत्मा के मालूम में, परमेश्वर के आत्मा का वो ये नहीं करेगा। और इसीलिए यूहन्ना 4:14 में प्रभु यीशु ने क्या बोला, एंड यू रीड John 14:26 and 27, 26 26। But the counselor, the Ruach HaKodesh, whom the Father will send in my name, will teach you everything. That is, he will remind you of everything I have said to you.
बरोबर है. बट द काउंसलर, हिंदी में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो. 14 हाँ 26. 14 का 26. ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमको कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता ने मेरे नाम से भेजा गया, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा. स्मरण कराएगा, याद दिलाएगा. वो याद अभी जब वो था वो टाइम मगर याद नहीं दिला रहा है. वो याद दिलाएगा जब हम उनके साथ थे. He is going to remind us. He are going to bring to remembrance what he has told us when we were with him in the spiritual realm before coming into this world. क्योंकि हम सब उसमें थे जब हम आत्मिक स्तर पे थे, उसके अंदर थे. जब उन्होंने वो बताया तो वो सब याद दिलाएगा. उसका योजना इसके बारे में याद, वो उस दिन का नहीं, अभी का नहीं कि याद दिलाएगा, वैसा नहीं. वो और समय का याद दिलाएगा. हमें याद दिलाएगा उसने हमें इस दुनिया में क्यों भेजा. उसने ये वो याद दिलाएगा हम कौन है, कौन थे और हम कौन है, इसके बारे में याद दिलाएगा. अगर हम नहीं जानेंगे हम कौन है, जो हम इस मालूम में इस शिक्षण के अंदर, ये तंबू के शिक्षण के अंदर हम इसको जानेंगे हम कौन है. We will know only through this in-depth study of the tabernacle we will know who we are, actually are. वो याद दिलाएगा. वो पवित्र आत्मा जो परमेश्वर है वो याद दिलाएगा. तो ये रिमेंबरिंग इज एक्चुअली री-रिमेंबरिंग. ये याद दिलाना बोलेगा तो वापस हमको याद दिला रहा है. हम भूल चुके हैं. हम दुनिया में इतने व्यस्त हो गए कि हम भूल चुके हैं हम क्या है भूल के. Here is another 3-part program for studying the tabernacle. अगर तंबू के बारे में है तो 3 भाग है. ये प्रोग्राम के बारे में ये है कि प्रभु यीशु ने ये कहा मत्ती 7 के साथ में. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. बरोबर है. यहां पे लिखा है मांगो बोला ना, मांगो बोला तुम्हें मांगो. मिलेगा. मांगो तो तुम्हें मिलेगा. मिलेगा. ढूंढो तो तुम पाओगे. म्हणजे मांगो का मतलब ये है तुम्हारे क्या चाहत है. it is like this, a desire with a strong craving. Everybody had that craving. We had that craving, and that's why we were saying, come on, let's start tabernacle for now. For more than a year, everybody is saying tabernacle, brother, tabernacle. वो मालूम है तंबू के बारे में लोग बोल रहे हैं. उनके पास एक चाहत थी, एक मालूम में एक भूख थी. इसके लिए प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हम लोग ने आज चालू किया है इसको. हमें मालूम है कितना रुकावट मेरे पास, मेरे खुद के मन में आत्मा में रुकावट आए थे इस समय के पहले. You see, so ask, there should be a craving, and that is a craving which brought us together. Understand? Then seek, और ढूंढो बोला और तुम्हें मिलेगा. And seek and you shall find. और अगर तुम ढूंढेंगे तो तुम्हें मिलेंगे. So, it is seeking is to search and keep searching. Keep searching. It is not that only you have this thing now. We need to go back home and meditate on it and study, restudy it, re-revise it. हमें मालूम वापस उसको मालूम है, इसके पर मनन करना है, ये करना है कि क्या हम लोग आज ने सीखा है बोल के. And knock and it shall be open to you. और खटखटाओ और तुम्हारे लिए खुला जाएगा. ये means expectantly waiting for the answer.
अपेक्षा करो कि हमें उत्तर मिलेगा। अपने खुद के बारे में अगर हम खुद से प्रेम नहीं करेंगे, दूसरे से कैसा करेंगे? बहुत से लोग बोलते हैं हम अपने आप से मालूम नफरत करते हैं, आई हेट माई सेल्फ एंड आई लव अदर्स। ऐसा होता है क्या? अपने आप से प्रेम करो पहला, तब जाके तुम दूसरे को प्रेम दे सके। तुम्हारे पास प्रेम नहीं तो दूसरे को क्या देंगे? प्रभु यीशु के पास प्रेम था, उसके पास शांति था तो वो दूसरे को दिया। मेरा शांति मैं तुझे देता हूं, उसके पास था बोल के दे रहा है ना। हमारे देश में शांति ने दूसरे लोग को शांति को मालूम है बेचता है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, लेकिन वो दुनिया है, चलता रहता है उन लोग का। समझे क्या नहीं? एंड दैट इज द रीजन व्हाई आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू सीक हिम विथ ऑल आवर हार्ट। हमें मालूम है, हमारा एक जिम्मेदारी है कि हम उसको खोजे मालूम में, उसको ढूंढे मालूम में हमारे पूरे हृदय से। दैट ही में रिवील टू अस हिज प्रॉमिसेस, दैट ही में वो उसके मालूम वादाओं को मालूम में हमें याद दिलाएगा। इसके अंदर पूरे वादे हैं, ये किताब में पूरे वादे हैं। समझा कि नहीं? बिकॉज गॉड इज सॉवरेन, he will bless those who he want to bless, he curse those who wants to curse. So if we are not easily discouraged, अगर हम आसानी से मालूम में अगर ये नहीं होगा, डिस्करेज नहीं हो गए, you must know that he has given us a strong craving appetite to know his truth. उन्होंने हमें एक चाहत दिया है कि उसके सत्य को जानने के लिए। एंड आवर रोल इज टू ओवरकम ऑल द डिस्ट्रैक्शन। और जो भी डिस्ट्रैक्शंस आते हैं दुनिया में अपने इसमें, तो इसके ऊपर हमें विजयी बनना है और उसको खोजना है, उसको ढूंढना है। यीशु मसीह नाज़री के नाम में आमीन।